Magnesium has a melting point of 650 degrees Celsius and high electrical conductivity. Explain these properties of magnesium by referring to its structure and bonding. So, why does it have a high melting point and a good conductivity? तो इसमें magnesium is giant metallic. That is why breaking the bonds. Yeah, that is why it has a higher melting point. And एक और चीज बोली हम लोगों ने चैट में, क्या बोली है? And free electrons. So yes, you guys are correct. And magnesium has a delocalized या free moving electrons. Both words are correct. Delocalized electrons which can conduct electricity. So that is the reasons why magnesium has this and that. When magnesium is heated in air, magnesium oxide is the major product. Small amounts of magnesium nitride are also made. Calculate the oxidation number for magnesium and for the nitrogen species in Mg3N2 to complete table 1.1. तो Mg का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है और नाइट्रोजन का क्या होगा? मैग्नीशियम का है +2 एंड नाइट्रोजन का है -3. ठीक है, यस, यू गाइस आर करेक्ट. एक तो तरीका है इसका देखने का कि आपको पता है ग्रुप 2 वाले का हमेशा 2+ ही होता है, राइट? यू नो दैट. सो आप +2 वैसे ही लिख सकते थे. ठीक है, एंड देन यू कुड हैव सॉल्व्ड के 3 × +2 एंड देन +2x equals to 0 and then solved. ये हो जाएगा -6 and x equals to -3. इधर से आ जाता. या फिर आप ये भी देख सकते हो कि ये +2 है अगर, तो ये बेसिकली इधर गया है ना, वापस ऊपर शिफ्ट कर दो वापस, तो +2 और बेसिकली वो उधर गया है तो वो -3 होगा. सो दिस इज द आंसर्स टू दिस. ठीक है, अच्छा, राइट दीज लाइक दिस. ठीक है, 2+ होता है और 3 माइनस हो गया. ठीक है, अच्छा, देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन. एक्सप्लेन योर आंसर. कैसा रिएक्शन ऑकर कर रहा है, इसको नाम क्या देंगे हम? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग ओवर हियर? इट इज अ redox रिएक्शन. वेरी गुड एमन, मरियम एंड सदफ. और redox क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मैग्नीशियम गॉट ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज 0 से +2 हो गया और नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया 0 से -3. सो redox as magnesium got oxidized from 0. क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अपने एलिमेंट फॉर्म से 0 to +2 and nitrogen got reduced from 0 to -3. Yes, Mariam, you can also write in terms of loss and gain of electrons. ठीक है, वैसे ही रख सकते हो. अच्छा, now define enthalpy change of formation. So what's the enthalpy change of formation? Do you guys remember? When one molar product is formed from its constituent element under standard conditions. Very good. So the amount of energy absorbed released when one molar compound is formed from its constituent units. Yes. So it is the amount of energy absorbed / released when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements under standard conditions. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस. आई डोंट नो, पहले ही लिखा करके दिया करते थे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बताओ. खैर अब नहीं लिख के देते हैं स्टैंडर्ड, फिर भी आपने ये अज्यूम करना है स्टैंडर्ड ही पूछ रहे हैं. ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दे रिमूव द वर्ड टू, दे स्टॉप प्रिंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन पूछ रहे हो तो आप स्टैंडर्ड का ही बताना, हवाला स्टैंडर्ड का ही दोगे. ठीक है जी. अच्छा, when 3.645 grams of Mg solid burns in excess N2 to form Mg3N2 solid, 23.05 kilojoules of energy is released.
Calculate the enthalpy change of formation of delta HF of Mg3N2. Show your working. देखो हमें पता है इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. Now all I need to do is divide this value by the number of moles of this thing formed, because इसके number of moles है प्रोडक्ट के मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, right? Because it's per mole of that. So हमें क्या करना पड़ेगा? We'll have to use a bit of stoichiometry. इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे और फिर इस वैल्यू को उसके मोल से डिवाइड कर देना है. ठीक है. So Mg solid burns in N3. So Mg solid is burning in N2, which is gas, and it is forming Mg3N2. ठीक है. बैलेंसिंग कैसे करूं उसकी? I think it's going to be something like this. That is going to be 3 mg and yep, so on and so forth. अच्छा, अब mg के मोल्स निकाल लेते हैं. तो मोल्स ऑफ mg क्या हो जाएंगे? मास अपॉन mr यार, that's 3.645 and I think mg का होता है 24.3 if I am correct. So क्या आ रहे हैं? Let me also check just जल्दी से. 0.15. ठीक है. yes, 0.15. Can you guys tell me the moles of Mg3N2 जो बन रहे होंगे? What would those be? They would be 3:1 का रेशियो है, यानी जितने इसके आ रहे हैं 1/3 इसके आएंगे, right? So 0.15 into 1/3, that is going to be 0.05. ठीक है. अगर इसमें कंफ्यूजन होती है किस तरह से हो रहा है किस तरह से नहीं हो रहा, तो टेंशन नहीं लेना, इस तरह से कर देना. Mg is to Mg3N2, ये 3 है, ये 1 है, इसके 0.15 आए अगर, तो उसके क्या होंगे? उसके x बोलने आप, एंड देन यू जस्ट यूज यूनिटी मेथड टू वर्क इट आउट. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.15 डिवाइड बाय 3. ठीक है. सो डोंट वरी अगर डायरेक्ट नहीं बता सको, ये कर सकते हो. दिस इज द अदर अप्रोच. ठीक है. ये आ गए इसके मोल्स. अब 23.05 किलो जूल्स को इन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं. सो डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा? 23.05 kilojoules divided by 0.05. What's the value coming out to be? This should come out to be a huge value, 461. So 461. ठीक है. We had 4 significant over here. हमारे पास 4 significant इधर भी हैं, and I think हमें 4 significant ही लिखना पड़ेगा आंसर. So let's write the answer as 4 significant. तो मैं इसको लिख रहा हूँ 461 exact आया है. ठीक है. सो वील राइट दिस एज 461.0. ठीक है. दिस इज 461.0. इन्होंने कोई यूनिट नहीं लिखा है, तो मैं यूनिट भी लिख रहा हूं. दिस शैल बी किलो जूल पर मोल. ठीक है. एक और चीज हमें इधर डालनी होगी, वो मेक श्योर करना है साइन हम देख के डालें. तो साइन क्या डालूं मैं इसमें? व्हाट शुड द साइन बी? नेगेटिव, बिकॉज दिस मच एनर्जी वाज रिलीज्ड, सो इट्स एन एक्सोथर्मिक. यस, वेरी गुड. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू गाइस आर करेक्ट. अच्छा, उसके बाद question 2 starts on next page. Thank you for telling us. Radium Ra is an element found in group 2 of the periodic table. It is a crystalline solid at room temperature and conducts electricity. Radium chloride has a melting point of 900 degrees Celsius and is soluble in water. Predict the lattice structure of RaCl2 based on the properties described. तो lattice structures का कैसा होगा? Giant ionic. ठीक है. lattice structure बता रहे हो तो दोनों चीज लिखोगे. स्ट्रक्चर भी giant है और बॉन्डिंग भी which is ionic. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये है ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन रेडियम. तो भाई रेडियम का हम दिखा देते हैं. रेडियम है ये, और इसमें बाहर जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. एंड देन यू हैव 2 क्लोरीन्स. ठीक है. 2 क्लोरीन है, एंड इनके पास जो है वो क्या होते हैं? इनके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. आई एम नॉट ड्रॉइंग ब्यूटीफुल डायग्राम्स, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीजें तो ओ लेवल से करके आ रहे हो, तो मैं ये जल्दी से कर रहा हूँ पार्ट. ठीक है. आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, सो दैट वी कैन जस्ट जल्दी से. ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसे, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसे, एंड सो यू फॉर्म 2 थिंग्स. वन इज गोइंग टू बी योर Ra, दैट इज समथिंग लाइक दिस. अब उसका इनर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ऑल्दो the thing goes like 2 8 18 and so on and so forth. ठीक है. बट the thing is के आपको नहीं सिखाया अभी, फिर भी उन्हें 2 8 18 वाली चीज अभी तक नहीं सिखाई आप लोगों को, तो टेंशन ना लो. एंड दिस इज 2 Cl, and this is 1 2 3 4 5 6 7, and then show the dot of radium that is over here. और ये आ गया माइनस का चार्ज. ठीक है. ये हो गया हमारा जायंट आयनिक
लैटिस, जो भी आयनिक कंपाउंडिंग जो हमें दिखानी थी. Now, solid Ra and Ca show similar reactions with H2O, but the reactions occur at different rates. ठीक है, उसकी कोई ना कोई वजूहात होंगी which you can do, which you can work out on some inference पे. ठीक है, inference की basis पे. Separate samples, each containing a single piece of solid Ra or Ca, are added to equal volumes of cold water. Each sample contains equal number of moles of solid and the H2O is in excess. Construct an equation for the reaction of Ra with H2O. जब रेडियम रिएक्ट करेगा विद H2O तो क्या फॉर्म होगा? Very good, Mariam. So it's going to be radium plus H2O is going to form me Ra. Group 2 ones are always going to form OH2, RaOH2, and then plus the rest is going to be hydrogen gas. ठीक है, and this shall be aqueous. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सॉलिड. लिखा हुआ नहीं है, मैंने कर दिया क्योंकि मुझे अभी लग रहे थे कि मैं आराम से कर सकता हूँ. अगर आपको नहीं लग रहा हो तो आप छोड़ के आ जाना. ठीक है, बाकी इसकी तरह बैलेंसिंग भी देख लेते हैं. तो आई थिंक इधर 2 आ जाएगा. सो 2 2s are 4 and then 2 and 2 4 and then 2 ऑक्सीजन, सब कुछ बैलेंस हो गया. Identify which element Ra or Ca reacts with H2O at a faster rate. Suggest how the observations of each reaction would differ. So which would react at a faster rate, radium or calcium? Because atomic radii, larger, weaker bond. Yes, so you know the reactivity increases down the group for the group 2 elements. Yes, so the electrons will be lost much more easier. ठीक है, so if not electronegativity, you're not doing covalent bonding, तो electronegativity लिखोगे. वालेकुम अस्सलाम. Okay, मेरा बच्चा हमजा. तो you're going to write that obviously it's more reactive. और reactive क्यों है? Because का atomic radius इतना बड़ा हो चुका है, उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इंक्रीज करता है, बोथ कैंसिल ईच अदर आउट. उसका एटॉमिक रेडियस इतना बड़ा हो चुका है कि न्यूक्लियस इतनी आराम से उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पा रहा. सो दे आर इजियर टू बी लॉस्ट टू अदर थिंग्स दैट विल टेक दोज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी. अच्छा खैर, इसमें रीजन नहीं लिखना, तो डोंट वेस्ट स्लाइड writing the reason. उन्होंने बोला बस identify which element and suggest how observation will be different. So Ra will react at faster rate. और ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क होगा? पहले तो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं? फिजिंग और एफरवेसेंस. सो इफ Ra is reacting at a faster rate, so there shall Ra will react at a faster rate and produce more effervescence. Yeah, fizzing. ठीक है, more effervescence than कैल्शियम. ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन फरिया में बता रही है कि Ra will dissolve. तो यू कैन ऑल्सो राइट Ra will dissolve faster than calcium. तो ये भी लिखा जा सकता है. ठीक है, Ra will dissolve faster than calcium. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है suggest why these reactions offer at different rates, और इसके दिए हमें 2 मार्क्स. तो हमें इसके लिए थोड़ी सी बकवास क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी वो सारी चीजें. सो लेट्स जो है वो ठीक है, उन्होंने बहुत अलाउंस दी है इस दफा. तो खैर, सजेस्ट व्हाई दीस रिएक्शंस ऑकर एट डिफरेंट. तो हमने ये बात कर ली थी, रेडियम इज मोर रिएक्टिव as its nuclear charge is greater, but so is the shielding. And but so is the shielding, and these cancel each other out. Sorry for the horrible writing. These cancel each other out. And क्या है फिर? न्यूक्लियर चार्ज. रेडियम हैज ए ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, sorry, a greater atomic radius, not nuclear charge, greater atomic radius, which is why it can lose electrons more easily than calcium. ठीक है जी. So this is your answer to this thing जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था. अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स,
One of the solutions is cloudy when the reaction has finished. At the end of each reaction, universal indicator is added to each reaction mixture. Suggest pH values of the solutions made in both reactions. Explain your answer. So what pH value do you suggest? रेडियम हाइड्रोक्साइड की क्या होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या होगी? एनी गेसेस? रेडियम हाइड्रोक्साइड की होगी A1 विच आई डिस्कनेक्ट हो गई। रेडियम हाइड्रोक्साइड की, अच्छा रेडियम हाइड्रोक्साइड की बोल रही है फरिया, आप लिख दें 12। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या लिखूं? नन ऑफ सी ए, कैल्शियम कुछ भी नहीं लिखूंगा। विल नॉट राइट एनीथिंग अबाउट सी ए। सी ए की कोई पीएच वैल्यू नहीं होगी, ऐसा क्यों मेरा बच्चा? Ca12 Ra8। ओके, फरिया इज सेइंग समथिंग लाइक दिस। कौन कौन इससे इत्तेफाक रखता है, यानी इसको अग्री कर रहा है? कौन किस किस को ये चीज समझ में नहीं आई कि ये क्या हुआ है? और कोई अगर आपके पास कोई और आंसर है तो आई एम ओपन, क्या आंसर होगा? फरिया कह रही रेडियम की कम होगी, कैल्शियम की ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? क्या कहोगे इसका आंसर? अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आ रही दोनों एल्कलाइन है? आई होप ये समझ में आ रहा हो कि दोनों एल्कलाइन है। सर मुझे लगता है ROH12 होगा एंड COH8 होगा। एंड यस हमजा, यू आर करेक्ट, लेकिन COH8 नहीं होगा, इतना तो आपको भी पता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाज समथिंग अराउंड लाइक 7, समथिंग अराउंड 8। ठीक है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व करता है, इट फॉर्म्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, अच्छा खासा अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है जी। तो द करेक्ट थिंग इज गोइंग टू बी दैट दोनों अल्कलाइन होंगे और अच्छे खासे अल्कलाइन होंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रिजॉल्व। MgOH2 इतना सोल्यूबल नहीं होता, इसके लिए उसकी 8 to 9 थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 8 to 9 से ज्यादा होगी, लाजमी होगी। सो आई एम गोइंग टू से इसकी 12 एंड आई एम गोइंग टू से इसकी अराउंड 13 to 14। ठीक है, या 14 कह लें। 14 तो होने से रही, ऐसे 13 कह लेते। ठीक है, 14 वुड बी टू मच। ठीक है सही, चलो 14 भी सही होगी, इतना कर लो। ठीक है, अच्छा ना, the reason why calcium hydroxide has a bit slightly lesser than RaOH2 is because the solubility of the hydroxide increases down the group. आपको पता है MgOH2 is insoluble, COH2 is more soluble, strontium is more soluble. सर pH down the group increases, आना उसका रीजन बता रहा हूँ। आपको पता है ना कि the solubility of the hydroxide increases, solubility increase कर रही है ना, so इसका मतलब है RaOH2 ज्यादा अच्छी तरीके से पानी में डिसॉल्व होगा और उसमें बहुत सारे OH माइनस आयंस होंगे, ज्यादा OH माइनस आयन, तभी उसकी pH भी ज्यादा आएगी, भी ज्यादा अल्कलाइन आएगी। और COH2 इतना अच्छा डिसॉल्व नहीं होगा जितना अच्छा RaOH2 होता है। अच्छा डिसॉल्व होता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा जितना RaOH2 होता है। देयरफॉर इसकी pH थोड़ी सी कम होगी विद रिगार्ड्स टू RaOH2। ठीक है, समझ में आया? एंड यस, वेरी गुड हमजा। सो R as RaOH2 is more soluble than CaOH2। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? सदफ और मरियम, एमन आ गई वापस? एमन, डिड यू मिस एनीथिंग? व्हाट डिड यू मिस? मुझे लग रहा है सदफ और मरियम को समझ नहीं आया। एमन, which solution will be cloudy? Obviously the calcium hydroxide वाला। Didn't miss anything? Okay, good. Calcium hydroxide वाला ना, one of the solutions is cloudy because calcium hydroxide इतना अच्छा dissolve नहीं करता है। So that's this we trying to tell you this। calcium hydroxide होगा ये, बिकॉज वो इतना अच्छा डिसॉल्व नहीं करता है। ठीक है, MgOH2 को याद करो, डिसॉल्व नहीं करता है, प्रेसिपिटेट रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डिसॉल्व कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ उसमें प्रेसिपिटेट आउट होने की कोशिश कर रहा है, तभी वो क्लाउडी हो गया सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, a sample of aqueous calcium halide contains either chloride, bromide or iodide ions. Complete table 2.1 describe a two-step process that could be used to identify the halide ion present। ठीक है, तो अगर मुझे हेलाइड आयन प्रेजेंट देखना है तो स्टेप 1 क्या होता था? डू यू गाइस रिमेंबर?
what did we add in this? AgNO3, very good. So you would use AgNO3 aqueous, ठीक है जी. और उससे पहले एक और चीज भी थी, try to write this, you would also write HNO3 aqueous so that any carbonate or all the ions होंगे उस solution में वो कोई confusing precipitate आपको ना दे दे. तो आपने ये दोनों चीजें ऐड करी. CaCl2 के साथ क्या ऑब्जर्वेशन होगी? White precipitate, yes. With bromine, green, and with iodine it would be yellow. ठीक है. Now you all remember कि क्या प्रॉब्लम होती है? That these are not very distinguishable. So you used to do something more. Yes, pale yellow भी ठीक है सदाब. So you used to do something more. What was that? You used to add NH3 aqueous. ठीक है. So NH3 aqueous. So what would be the observation? Not H2SO4, NH3 aqueous. ठीक है. aqueous अमोनिया डाल देते हैं, याद करो. डाइल्यूट में कुछ डिसॉल्व होता है, कॉन्सेंट्रेट में कुछ डिसॉल्व होता है, और एक होता है जो किसी में डिसॉल्व नहीं करता, राइट? सो CaCl2 किस में डिसॉल्व करेगा? डाइल्यूट वाले में या कॉन्सेंट्रेट वाले में? सो डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट NH3 aqueous. yes Mariam, you also correct in that, in saying that दोनों में डिसॉल्व करेगा, वो भी सही है. ठीक है. CaBr2 will dissolve only in concentrated NH3 aqueous, and the iodine wala does not dissolve in any concentration. ठीक है. You can say precipitate remains insoluble, कुछ भी. I'm just saying does not dissolve in any concentration. ठीक है. आप जितनी मर्जी भी कॉन्सेंट्रेट कर दो, आयोडीन वाला डिसॉल्व नहीं करता है. ठीक है. सो ये हो गया. वंस अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, ग्रुप 17 ग्रुप 2 एग्जामिनर लव्स. ठीक है. सो यू सॉ सम. सर HNO3 लिखना जरूरी है? नहीं, लिखना जरूरी नहीं है. इसमें उन्होंने इधर लिखना जरूरी नहीं था, बट इट इज गुड प्रैक्टिस ना. HNO3 पहले ऐड करते हो, you add the acid to destroy any other anion that is present, and then you add AgNO3 so that further आप उसको कर सको. लेकिन जरूरी नहीं है. ठीक है. इट्स नॉट टू मच जरूरी. इसमें अलाउंस है, इस क्वेश्चन में अलाउंस. ठीक है. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड्स. नाउ 0.025 moles of HI is added to a closed vessel and left to reach dynamic equilibrium. The total pressure of the vessel is 100 kilopascals. Explain what is meant by dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium का क्या मतलब था? Okay, so let's write this in a much more formal way. ठीक है. The rate of forward dynamic equilibrium is when नहीं हमजा, वो गलत होगा. Rate of forward action is equal to rate of action. Yes, dynamic equilibrium is when the rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction in a closed system. ठीक है. अच्छा, and so dynamic equilibrium is when the rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction in a closed system, which means I'm adding this thing. ठीक है. एक चीज बता रहा हूँ इधर, which means there will be no change in concentration of reactants or products. ठीक है. अच्छा, now why did I add this thing over here? इधर मार्क्स जो है वो मुझे 2 दिए हुए. ठीक है. I've been given 2 marks over here. तो although this is correct, dynamic equilibrium is when the rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction in a reversible reaction in a closed system. This is perfect.
फॉर गेनिंग 1 मार्क। ठीक है जी, इधर हमने 2 मार्क्स दिए हैं, सो हमने थोड़ी सी और समझ लो एक काइंड ऑफ और लंबा कर दिया, विच आई डोंट नो थोड़ा सा है इसकी मार्क्स की, मेरी दफा थोड़ी उन्होंने बड़ी ऐसी रखी हुई कि सब चीजें लिखो। खैर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। सो इसमें बस हमने एक और चीज लिख दी कि विच मींस देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स भी उतने ही रहेंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रहेगी, और H2I2 ये जो HI है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, और H2 और I2 उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन इतनी। सिर्फ इसलिए ऐड किया कि बिकॉज यू हैड 2 मार्क्स ओवर हियर। Describe one difference in the initial appearance of the reaction mixture compared to the mixture at equilibrium. तो अगर आप इतने मोल्स ऑफ HI डालते हो और फिर आप इसको करवा देते हो इक्विलिब्रियम में, छोड़ देते हो इसको, तो क्या फर्क पड़ेगा इनिशियल वाली केस से लेके इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में? यानी तब इनिशियली जब सिर्फ इसके थे मोल और ये जब दोनों आ चुके और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, तो व्हाट चेंजेस विल यू सी? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Describe one difference in the initial appearance of the reaction mixture. Reaction mixture के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या हो? याद करो, वी हैव स्टडीड दिस इन हाइड्रोजन हेलाइड्स की रिएक्टिविटी बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करते हुए कि हाइड्रोजन हेलाइड्स की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एक उसका मैंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करवाया था। हॉट रॉड डालोगे ब्रोमीन में तो कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, हॉट रॉड डालते हो हाइड्रोजन आयोडाइड में तो कुछ ऑब्जर्वेशन होती है। So maybe you can relate it something like that, कुछ उसके बारे में लिख सकते हो। Colorless to purple gas, you can say that there will be purple vapor at equilibrium। ठीक है जी, सो बेसिकली ये कलरलेस गैस है, ये होती तो वैसे स्टीमी फ्यूम्स होते हैं इसके, ठीक है जी, लेकिन जब बहुत ज्यादा हॉट होता है तो I would refrain from writing colorless, I'll just say that will be purple vapor at equilibrium। So there will be purple vapor at इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिकॉज आयोडीन फॉर्म हुआ है तो आयोडीन विल फॉर्म पर्पल वेपर। ठीक है जी। एंड दूसरी बात ये सदफ यू सेड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नहीं मेरा अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन की जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन थी वो सबसे शुरू में सबसे ज्यादा थी, जब इक्विलिब्रियम रीच होगा ना तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये बनना शुरू हो जाएंगे और ये बन चुके होंगे कुछ तादाद। ठीक है जी, सो इट्स गोइंग टू। और दूसरी बात ने अपीयरेंस पूछी थी, इसलिए विल हैव टू गो विद सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर द रिएक्शन डिस्क्राइब्ड इन इक्वेशन 1। तो हम प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं इन द एक्सप्रेशन फॉर Kp? यू विल राइट दैट अबव। दूसरी बात ये, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, ठीक है जी, आप प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर लिखते हैं और इसमें राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, और राउंड ब्रैकेट्स में यू विल गो विद पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है जी, गैस, एंड देयर इज नो जो है वो क्या कहते हैं मेरा बच्चा, HI गैस होती है। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड इज ए व्हाइटिश कलरिश काइंड ऑफ गैस, एक स्टीमी फ्यूम्स आते हैं इसके। आप जब ये थी सिर्फ और आपने इसको रिएक्शन मिक्सचर में डाल दिया, अब ये इक्विलिब्रियम रीच कर रही है तो आपको I2 भी बना रहे हो ना आप। I2 गैस कैसे होता है? इट्स पर्पल वेपर्स ना। सो बेसिकली अगर आपके पास पहले सिर्फ HI था और जब इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है तो फिर H2 और I2 भी बनना शुरू हो चुके हैं और बन चुके होंगे इतनी तादाद में, तो यू विल सी दैट देयर विल बी अ लॉट मोर पर्पल वेपर, देयर विल बी लॉट मोर I2 गैस ओवर हियर। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन में लिखिए पर्पल वेपर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, partial pressure of H2 gas round brackets make sure you write at equilibrium, ये नहीं भूलनी ये सारी चीजें। ठीक है जी, इस सबके मार्क्स है। then partial pressure of I2 gas once again at equilibrium, एंड देन रिएक्टेंट्स का भी आप कुछ इसी तरीके से लिखोगे। इसमें 2 लिखा हुआ है तो पावर 2 पे भी हमें रेज करना होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI gas, and this shall be at equilibrium and you will raise it to the power of 2. So this is the expression of your Kp. Can you guys tell me the units of this expression? इसके units क्या होंगे? What would be the units of this expression? Yes, so there shall be no units for this, क्योंकि because ऊपर नीचे सब कुछ cancel out हो जाएगा। Very good. At equilibrium, the partial pressure of HI is 86.4 kilopascals. Calculate the amount of HI present in the mixture at equilibrium. Show your working. अच्छा, बोल रहे हैं देखो,
पार्शियल प्रेशर, डू यू गाइज रिमेंबर पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, ये याद है? पार्शियल प्रेशर, what was that? That equals to the number of moles of reactant, ये जो भी number of moles of whatever over total moles and then multiplied by total pressure, right? So basically आप mole ratio निकाल के pressure में multiply करें तो आपके पास ये आ जाया करता था, right? Now look at this. You had 0.0245 moles of HI gas, ठीक है जी, जो आपने इसमें क्या करे थे, ठीक है, अच्छा, now this was this partial pressure equals to number of moles of whatever you're trying, जिसका partial pressure निकालना चाह रहे हो, divided the total moles into the total pressure that gives you the partial pressure. वो बोल रहे हैं partial pressure HI का जो है वो 86.4 किलो पास्कल्स है, ठीक है जी, 86.4 किलो पास्कल्स, ठीक है। आई एम राइटिंग किलो पास्कल्स ही, क्यों? बिकॉज टोटल प्रेशर भी मुझे किसमें दिया हुआ है, इन किलो पास्कल्स ही दिया हुआ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू द कन्वर्जन ओवर हियर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI, वो यही कह रहे हैं, यही निकाल दो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HI और अमाउंट ऑफ HI इन मोल्स है, तो मुझे यही चीज निकालनी है। सो आई एम गोइंग टू से NHI, दिस इज द थिंग, टोटल मोल्स जो है, देयर इज गोइंग, दोस आर गोइंग टू बी द थिंग्स जो हमें इधर बताई है, ठीक है ना बाबा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी और वर्किंग करनी पड़ेगी, बिकॉज वील हैव टू डू दिस। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना। फिर हमें अब इसके मोल्स निकालने हैं एट इक्विलिब्रियम, वी हैव टू वर्क आउट कि इसके मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम। तो इसका यही तरीका होगा कि हमें आइस वाला मेथड करना पड़ेगा एंड देन सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, नाउ इट वाज ICE एंड दिस इज क्या चीज है, कौन कौन सी चीजें हैं, HI H2I2, ठीक है। लेट मी ऑल्सो जस्ट गेट दी इक्वेशन यहीं पे, और ये मैं जो हूँ वो नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कम जगह दी है। कितने मार्क का सवाल है ये, 2 मार्क का सवाल है। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू गाइज रियलाइज समथिंग, ठीक है, बिफोर वी जस्ट डू दिस क्वेश्चन ऐसी हेड ऑन, ठीक है, कुछ चीज हम रियलाइज कर लें इधर, ठीक है। अच्छा, नाउ ICE, ठीक है, इनिशियली आपने HI के मोल्स डाले थे 0.025, यू पुट इन द मोल्स ऑफ HI एज 0.025 एंड ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे 0 0, ठीक है जी। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल है, वी डोंट नो, लेट्स से दैट द मोल्स एट इक्विलिब्रियम आर समथिंग x, नॉट 2x, हाउ डू यू नो इट्स 2x, हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर के इक्विलिब्रियम इसके क्या मोल्स है, वी डोंट नो व्हाट दैट वैल्यू इज, ठीक है जी। अच्छा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आई एम सेइंग कि जो इसके जो मोल्स हैं दे हैव चेंज्ड बाय सम वैल्यू x, ठीक है, कुछ वैल्यू x से चेंज करे हैं, और आपको पता है क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो -x से चेंज करे होंगे, ठीक है जी, they've changed by some value -x and now you're getting 0.025 -x, कुछ आपके पास ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे x कह लेते ना तो फिर थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है यहाँ पे निकालना कि चेंज क्या आ रहा है, सो फॉर, तो मैंने क्या किया, मैंने चेंज को ही x कह लिया, और मुझे पता है कम होगा तो मैंने -x कह लिया, एंड देन यू नो ये हो जाएगा 0.025 में से आपने माइनस कर लिया x। नाउ अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन यू नो कि इसके 2 टाइम्स है, इसके 1 और 1 है, राइट, यानी इसके 2 है तो इनके 1 है, यानी हाफ हो जाएगा इनका। तो बेसिकली दिस हैज इंक्रीज्ड बाय +x/2 एंड दिस इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय +x/2। सो बेसिकली इनके मोल्स जो है एट इक्विलिब्रियम इसके x/2 है और इसके भी x/2 है। अब थोड़ा सा और मैनेजेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है, बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू रियलाइज दिस थिंग, वरना हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाता। सो पार्शियल प्रेशर क्या है, दैट इज 86.4 kilopascals, then number of moles at equilibrium वो ये रहे 0.025 minus x, so that is 0.025 minus x divided by, now total moles at equilibrium वो ये रहे 0.025 minus x plus x/2 plus x/2, ठीक है, तो 0.025 minus x प्लस x/2 प्लस x/2 एंड टोटल प्रेशर क्या है आपका, या एक काम करें, क्योंकि यहाँ पे हमें और जो है वो मसला बनेगा, एक काम करते हैं टोटल मोल्स पहले अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि
वहां पे अंदर उस ब्रैकेट फ्रैक्शन के अंदर करने के लिए हमें और प्रॉब्लम की झेलनी पड़ेगी. आई एम नॉट विलिंग टू डू इट ओवर देयर. 0.025 माइनस एक्स प्लस 0.5x. ठीक है, x ओवर 2 है, मैं इसको 0.5x लिख रहा हूँ, एंड प्लस 0.5x. ठीक है, कैन यू डू दिस? -1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 क्या आएगा? 0 ही आ रहा है, राइट? -1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल मोल्स आपके पास 0.025 ही आ रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स राइट दिस नाउ. So 86.4 kilopascals is forming us. यहाँ पे नीचे हमारे पास टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 0.025 ही है, एंड दैट आल्सो मेक सेंस. क्यों? बिकॉज क्या कहते हैं, ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज आपने अगर एच आई कितने डाले थे तो मोल्स तो सेम. आपने अगर इनिशियल इतने एच आई के मोल्स डाले तो दे मस्ट रिमेन सेम, तो यहाँ पे वो सेम ही दिखा रहा है. एंड देन आपके पास टोटल प्रेशर क्या था? टोटल प्रेशर था आपके पास 100 किलो पास्कल. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय ए 100 किलो पास्कल्स. 100 किलो पास्कल्स. अच्छा, एंड देन यू कैन सी किलो पास्कल कट जाएगा. एंड लेट्स वर्क दिस आउट. यार एक सेकंड, तो लंबा हो गया है ना. आई कुड हैव डन इट जस्ट डायरेक्टली, फालतू की है. अच्छा चलो इसको सॉल्व करें पहले. Let's just do this जल्दी से. So it is going to be 86.4 divided by 100 into 0.025, and then so we're going to subtract this from over here. ठीक है, मैं मैथ्स जल्दी से कर रहा हूँ. ठीक है, you guys can take as long as you want. ठीक है, I'm just going to write one step में ही सब कुछ. So it's going to be 86.4 डिवाइड बाय 100 देन इनटू 0.025. ये माइनस है, उधर जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं. सो एंड देन दिस थिंग is getting subtracted from 0.025, that is giving you the value of x. x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? ये क्या बकवास है ये? why has the examiner done this? इतनी ये मार्क्स की में इतनी लंबी क्यों करी है भाई बिला वजह की? so this is coming out to be 0.0216. ठीक है, आई रियली डोंट गेट मार्क्स में सब क्यों करके दिखाया हुआ है. ठीक है, दिस वाज एब्सोल्युटली एंड अटरली यूजलेस हमारे लिए. ठीक है, हमें इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ. नहीं नहीं मेरा बच्चा इधर दी है, we're not writing this down. ये लिखा हुआ 100 किलो पास्कल्स. the total pressure of the vessel is 100 किलो पास्कल्स. ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये दी होगी हमेशा आपको. सही है. अच्छा खैर बहरहाल ये x आ रहा है 0.0216, एंड देन यू नो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 0.025 माइनस 0.0216. दैट कम्स आउट टू बी जो आपके इक्विलिब्रियम मोल्स थे ऑफ एच आई. सो यू गेट सॉरी नहीं 0.0216 नहीं आया, 0.0034 आया. सॉरी माय बैड, 0.0034. and when you're going to subtract both of these answers, so 0.0034, this is giving you 0.0216, right? That's what I told you this. अच्छा, so गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं. ठीक है, थोड़ा सा देर दो, मुझे ये समझना है कि मार्क्सिन में इतनी सारी चीजें क्यों बोली हैं, ये करके दिखाए बच्चा. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द एग्जामिनर है स्पेसिफिकली स्टेटेड कि आपको ये चीजें जो है वो करके दिखानी है. ठीक है, विच इज अ बिट अननेसेसरी. ठीक है, इस सवाल में. बट थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जामिनर ऐसा क्यों बोल रहा है, कि क्यों ये सब चीजें ये बच्चा करके दिखाए आपको कि ये सब कुछ हो रहा है. ठीक है, अच्छा हमने ये पहले फॉर्मूला लिख लिया था. हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज गिविंग द पार्शियल प्रेशर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने थे. टोटल मोल्स जो थे यू कुड हैव अज्यूम्ड डायरेक्टली फ्रॉम ओवर हियर कि वो 0.025 है. आप नीचे रखते 0.025. टोटल प्रेशर आपको पता था 100 किलो पास्कल था, यहाँ पे डालते 86.4, वो करते डायरेक्ट आंसर आता 0.0216. ठीक है, यू कुड हैव पुट एवरीथिंग इनटू दिस डायरेक्टली एंड यू वुड हैव गॉटन द डायरेक्ट आंसर 0.0216. ठीक है, लेकिन एग्जामिनर एक चीज यहाँ पे देखना चाह रहा हूं. लेट मी गेट इनटू उसकी थोड़ी सी बारीकी में कि वो एग्जामिनर
क्या देखना चाह रहा है, क्या चीज समझना चाह रहा है कि आपको आ रही है समझ या नहीं आ रही है। ठीक है, बेसिकली द थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि जितने मोल्स आप शुरू में डालें उतने मोल्स आपको बाद में मिले, दैट इज नॉट नेसेसरी। मतलब अगर आपने शुरू किया है और आपने 0.025 मोल्स ऑफ HI डाले थे, तो जरूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद आपके पास तब भी टोटल मोल्स 0.025 आए। दिस शुड नॉट बी, जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा 0.025 है। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज कि ऑब्वियसली अगर ये सपोज करते हैं अगर ये था A and that is forming into 2B and then C, so then you can clearly see कि अगर इसका एक मोल है तो इसके 2 मोल और इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 मोल है एंड यहाँ पे 1 मोल है, तो देन तो फिर गलत हो जाती बात। आप फिर ये कहते हैं कि 1 मोल और फिर आप कहते हैं इक्विलिब्रियम भी 1 ही मोल है, तो वो गलत बात है। इक्विलिब्रियम पे फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मोल है, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं। ठीक है, सो व्हाई इज द एग्जामिनर आस्किंग इन द मार्क स्कीम कि आप ये सब कुछ करके दिखाओ, although it's just a 2 mark question, is that so that you can prove खुद भी और एग्जामिनर को भी कि जो इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स हैं वो 0.025 ही है। ठीक है, सो द मोल्स एट इक्विलिब्रियम आर स्टिल 0.025 ही इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। हर दफा ऐसा नहीं होगा, जो टोटल मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम दे कैन चेंज विद रिगार्ड्स टू जो आपके इनिशियल आपने मोल्स डाले थे, दे कैन चेंज। सो यू विल हैव टू चेक दिस कि क्या आ रहे हैं मेरे इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स, और वो कैसे होंगे, इन सब चीजों को जब ऐड अप करोगे एक साथ। तो वी एडेड देम all of them together, we got 0.025 moles as our total moles, which is coincidentally equal to the initial number of moles। तो वो वही एक सिंपल 1 स्टेप कैलकुलेशन जाती है जो थोड़ी सी हमें लंबी करके इधर एग्जाम को हमें दिखानी पड़ी, ओनली फॉर द रीजन बीइंग दैट जरूरी नहीं है हमेशा इनिशियल मोल्स और इक्विलिब्रियम मोल्स बराबर हो। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, मैं खुद ये बस कंफ्यूज था इसमें बिकॉज इसकी मार्क स्कीम में बहुत सारे और करके तरीके दिए हुए कि इस तरह से भी कर दो, इस तरह से भी करके दिखा सकते हैं बच्चा, फिर उसमें PPH2 PPI2 भी लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें चल रही है। सो आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड कि ये एग्जामिनर मांगना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। सो बहरहाल दिस इज द अप्रोच दैट आई फील लाइक कि आप सब लोगों को समझ में आ जाएगी, एंड ये हमने करी है क्लास में टुगेदर। ठीक है, सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर। सिर्फ मसला ये था कि टोटल मोल्स जरूरी नहीं है इनिशियल मोल्स के बराबर हो, सो वी जस्ट हैड टू प्रूव फ्रॉम ओवर हियर कि टोटल मोल्स 0.025 भी थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आया? इफ यू वांट मी टू गो ओवर दिस अगेन तो मुझे बताओ, आई विल गो ओवर दिस अगेन। मतलब समझ में आया पे यस है, या डू यू वांट मी टू गो ओवर दिस अगेन? आई हैव नो क्लू। आई जस्ट अगर क्लियर हो गया तो क्लियर बोल दो, अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है, गॉट इट, सही है। तो कुछ कुछ सवाल आते हैं विच ऑल्सो कंफ्यूज मी विद रिगार्ड्स टू दी मार्क्स गिवन, जो मुझे नहीं लगता जस्टिफाइड होता है कभी, ऐसे इसके लिए 2 मार्क्स जस्टिफाइड नहीं है। तो उसी में मैं कंफ्यूज जाता हूँ जब मैं मार्क्स स्कीम देख रहा होता हूँ साथ साथ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इट वुड हैव बीन प्रॉपर्ली, लेकिन मार्क्स स्कीम में लिखा है स्पेसिफिकली ये बच्चों को ये दिख करके दिखाना है। ठीक है, अगर मैं मार्क्स देख रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यही कर देता, आई वुड जस्ट अप्लाइड दिस फॉर्मूला एंड गॉटन डन विद इट, क्योंकि मुझे पता है 2 मार्क्स में इतना सब कुछ नहीं होनी चाहिए बकवास। लेकिन कल भी एक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था, आई रिमेंबर, कि जो मार्क्स बहुत ही कम थे एंड देन यू हैड टू डू अ होल लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट, ए और बी और वो पता नहीं क्या था। ठीक है, सो थोड़ा सा जो है वो इस तरह हम कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, नाउ use equation 1 and the Born energy values in table 3.1 to calculate change in enthalpy delta H for the thermal decomposition of 1 mole of HI, show your working। तो ये कैसे करते हैं, दिस इज इजी पीजी। आपको बस ये देखना है कि आपने जो है स्ट्रक्चर बना के देखना है, फिर आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने अपना काम करके दिखाना है। ठीक है, so this is the reaction, ठीक है, thermal decomposition of H2 of HI भी ऐसे ही होगी। so they're saying calculate the enthalpy delta H for the thermal decomposition of 1 mole of HI gas। तो निकाल लेते हैं ना। अच्छा, आई थिंक इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ HI गैस का निकालो। तो एक काम करते हैं कि वी डिवाइड दी होल इक्वेशन बाय 2, बिकॉज मुझे इधर 2 नहीं चाहिए, आई वांट टू गेट अ 1, सो आई विल डिवाइड दिस बाय 2, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, एंड दिस विल आल्सो टर्न इनटू अ हाफ। ठीक है, अगर आप 2 रख के करोगे तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ HI की थर्मल डिकम्पोजिशन की वो आएगी। ठीक है, आई वांट 1 मोल ऑफ HI एंड देन मैंने फर्दर करस्पॉन्डिंगली को हाफ एंड हाफ कर लिया। नाउ व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ HI? HI is something like this is forming into
this thing that is half, and this is HH, and plus half, and once again iodine और iodine single bond ही होता है, ठीक है जी। Now what do we know? Products हमेशा माइनस में जाएंगी because their exothermic, bond making is exothermic, reactants are endothermic, ये हमेशा पॉजिटिव में जाएंगे, ठीक है जी। So your delta H is going to be reactants minus products, ठीक है जी। रिएक्टेंट क्या है? वो है HI, HI एक ही दफा है, सो HI इज 299 माइनस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का हाफ HH यानी 436 का हाफ, सो इट्स हाफ इंटू 436 एंड प्लस हाफ इंटू II दैट इज 151, ठीक है जी। सो ये दोनों एड अप करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। It's coming out to be 5.5 kilojoule per mole. Yes, so it's coming out to be plus 5.5 plus 5.5 kilojoule per mole. ठीक है, ओनली कैच इधर ये था कि आपको ये मेक श्योर करना था कि आप इधर अगर आप वैसे करें तो 2 मोल की निकलती, तो आप डिवाइड बाय 2 कर लेते इस वैल्यू को, वो आती 11, आप उसको डिवाइड कर लेते बाय 2। अगर आपको अगर डायरेक्ट ही पहले से ही सही करना था तो you just had to divide the whole equation by 2. So you're getting plus 5.5 kilojoule per mole. Perfect. Then अच्छा, once again you had been given 3 significant values, बल्कि ठीक है, ठीक है। अच्छा, describe the effect of increasing pressure on the value of Kp for the decomposition of HI gas। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो Kp पे क्या फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट। परफेक्ट, बिकॉज प्रेशर कॉजेज नो चेंज ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ Kp। कौन सी चीज है जो इफेक्ट करती है? विच इन्वायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट्स टेम्परेचर, और फिर कैसा फर्क आता है टेम्परेचर की वजह से? व्हाट्स द फर्क दैट हैपेंस ड्यू टू द टेम्परेचर? रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, Kp इंक्रीजेस नहीं, Kp विल इंक्रीज, ठीक है जी, बिकॉज आपका बेसिकली जो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो आपका जो क्या होता है केपी जो है वो इंक्रीज करता है। वो इसलिए करता है बिकॉज केपी क्या है? केपी ये है, ठीक है जी, दिस इज केपी। अच्छा, इट्स नॉट एज सिंपल एज केपी हमेशा इंक्रीज करेगा, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक और कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है जी। सो इफ अगर हमें पता है कि क्या आया है, प्लस 5.5 आया है, यानी इसका होगा प्लस 11, ठीक है। सो वी नो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, व्हाट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन? दैट इज एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट्स ऊपर है तो उसका मतलब है केपी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो प्लस 11, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगी। सो प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, तो केपी की वैल्यू आपके पास ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, moving onwards, so HCl gas is prepared by adding NaCl2 concentrate H2SO4, ठीक है जी। HI is not prepared by adding NaI to concentrate H2SO4 because the HI produced also reacts with concentrated H2SO4. Identify the type of reaction when NaI reacts with concentrated H2SO4 to form HI. तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जब सोडियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है विद H2SO4। You guys remember? It was known as the acid base reaction. तो सारे जो आपके पास ये जो सोडियम सॉल्ट, सोडियम हेलाइड्स है, दे फर्स्ट शो यू एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज होने को हम एसिड बेस बोलते हैं, ठीक है। कॉल दिस एन एसिड बेस रिएक्शन, दे शो यू एन एसिड बेस रिएक्शन एंड देन फर्दर फिर रिडक्शन होना शुरू होती है एंड रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू होता है, राइट। सो द फर्स्ट बना वाज एसिड बेस, जिसमें HI या HCl या HBr फॉर्म होता है। फिर बोल रहे हैं राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ HI गैस एंड concentrated H2SO4, व्हिच वन डू यू गाइस वांट टू राइट? कौन सी प्रोडक्ट बनानी है आप लोगों को? देयर इज 3, यू कैन राइट एनी 3, यू आर सेइंग राइट एन इक्वेशन। सो यू वांट टू फॉर्म H2S, ठीक है जी। सो HI रिएक्ट्स विद H2SO4, तो सदफ कह रही है सबसे आखिरी वाला जो बिल्कुल रिड्यूस कर देता है वो वाली बना ले। सो इट विल बिकम H2S प्लस I2 एंड H2O, ठीक है जी। और सदफ ने हमें बैलेंसिंग भी दे दी है, I2 है, H2S है और 4H2 है, ऐसा ही है। दिस इज द बैलेंसिंग, लेट्स चेक।
H3 H2 ना बाबा थोड़ा सा ऑफ हुआ है H ठीक है इधर से गिन लो इधर से गिनो आउट फ्रॉम ओवर हियर ठीक है अच्छा मैं ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर रहा हूं मेरे पास चार ऑक्सीजन इधर है ठीक है सो आई हैव टू मेक दिस 4 ऑक्सीजन सो 4 2 8 प्लस 2 10 हो गया मैं इसका छेड़खानी नहीं करूंगा इसका करूंगा तो ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएंगे तो मैं चेंज नहीं मैं इधर कर लेता हूँ छेड़खानी तो 4 2 8 प्लस 2 इज 10 तो 10 मतलब मुझे हाइड्रोजन 10 चाहिए दो इधर है तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएंगे 8 सो 8 प्लस 2 इज 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए अच्छा आयोडीन मैंने 8 कर दिए तो यानी ये भी 4i2 हो जाएगा इज इट बैलेंस्ड सो 10 हाइड्रोजन्स 10 हाइड्रोजन्स 8 आयोडीन्स 8 आयोडीन्स SO4 S1 था S1 O4 थे O4 हो गए so this is the equation for that you would have also written the sulfur वाली you could have also written the SO2 वाली SO2 वाली की सबसे आसान बैलेंसिंग है सल्फर वाली की थोड़ी मुश्किल है एंड देन H2S की ज्यादा मुश्किल है ठीक है सो अगर हो तो इफ यू हैव दैट इंफॉर्मेशन इन योर हेड ट्राई टू गो फॉर द SO2 वाली ठीक है अच्छा now explain why HI gas reacts with constant H2SO4 whereas HCl does not why does HI gas react with H2SO4 and HCl does not what was the reason for this HI is a stronger reducing agent or you can say the I minus ions are a stronger reducing agent than Cl minus ions so you will write that not bond enthalpy you just say HI is a stronger I'm going to go with Faryaz-Birds is a stronger reducing agent than HCl and obviously that reason does comes from the bond enthalpy that reason but हम उसमें फिर बहुत ज्यादा और आगे घुस गए उसको भी एक्सप्लेन करने में हमें सिर्फ reducing agent का बताना था so HI is a stronger reducing agent than HCl या ये देख सकते हैं I minus ions are have more reducing power या can are more better reducing agents than Cl minus ions that would have also been correct अच्छा अब शुरू हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक के सवाल बाकी पूरा जो था वो इनऑर्गेनिक था एंड इन दिस क्वेश्चन पेपर आई शोड यू अ केपी का भी सवाल जो हमने इससे पहले किसी पेपर में नहीं किया था ठीक है तो कभी कभार आ जाता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कभी कभार आता है केपी केसी कभी कभार आया हुआ होता है और क्या पढ़ा हमने केपी केसी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यही है दो मेरे ख्याल से और टॉपिक्स जो हमने ऐसे ही पढ़े वैसे आप लोग देख रहे हो केमिकल बॉन्डिंग भी आ रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है हेसिस लॉ और केमिकल एनर्जेटिक्स भी केमिकल एनर्जेटिक्स की फिर भी फ्रीक्वेंसी इतनी है वो थोड़ा बहुत स्टैंड अलोन पार्ट दे देते हैं यानी जैसे इधर भी उन्होंने वो निकलवा लिया था क्या निकलवाया कहाँ निकलवाया ये चीज तो ये आ जाता है बट केसी केपी वाली आती है कम आती है इतनी ज्यादा नहीं आती है एंड सिमिलरली विद द थिंग सच एज वो था आइडियल गैसेस वाली चीज भी आती है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं ठीक है जी सो यू विल प्रोबब्ली सीइंग बाय व्हेन यू डूइंग अ लॉट ऑफ पेपर्स अपने ओन पे तो देखोगे बहुत सारे सवालों में वो नहीं है जो केसीकेपी या वो नहीं है ठीक है अच्छा ब्रोमीन रिएक्ट्स विद ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म ब्रोमोब्यूटेन two structural isomers with the molecular formula C4H9Br are produced during this reaction draw the two structural isomers and state the systematic name कह रहे हैं दो ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं तो आई थिंक वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस क्या मैं पता हो 4C है ठीक है अब Br ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय राइटिंग द Br ओवर हियर एंड देन कंप्लीटिंग ओवर दिस अच्छा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोले ड्रॉ कर दो और कुछ नहीं बोला है तो हम बस ड्रॉ कर देते हैं सो वन वुड बी लाइक दिस ठीक है एंड देन द अदर वन वुड बी क्या करूंगा मैं अदर वन के लिए क्या करूंगा I'll just place the bromine at the second carbon and then you can see अगर आप ब्रोमीन यहाँ पे रख दोगे वही चीज हो जाएगी अगर आप ब्रोमीन यहाँ पे रख दोगे तो वही चीज हो जाएगी so that would not make a difference so it would be same यही होगा बस ये कर लेते हैं कि यहाँ पे H डाल देते हैं एंड वहां पे Br डाल देते हैं ठीक है by the way what kind of reaction is this इसको क्या बोलते हैं हम when you're adding bromine by use of ultraviolet light free radical substitution ठीक है the main part is substitution we cannot draw chain isomer butane ठीक है ब्यूटेन रिएक्ट कर रहा है ना तो ब्यूटेन क्या होता है स्ट्रेट चेन होता है अगर वो होता तो फिर 2 मिथाइल प्रोपेन होता राइट अगर उसका आइसोमर होता ब्यूटेन था तो क्योंकि ब्यूटेन था क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेट चेन है तो अब ब्रोमीन ऐड हो अब सिर्फ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो चेनिंग नहीं कॉज कर सकता ठीक है समझ में आया because you have butane that's already a straight chain
4 कार्बन की ऑलरेडी स्ट्रेट चेन है, उसमें ब्रोमीन सिर्फ सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट्स द नेम ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर 1? 1 ब्रोमोब्यूटेन, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, बस 2 ब्रोमोब्यूटेन कर देंगे हम उसको, राइट? सो या प्रीटी इजी पीजी। ठीक है, नॉर्मली इतना आसान क्वेश्चन आते नहीं है। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर शोन इन A2। कौन सी टाइप है ये? इज दिस पोजीशन और इज दिस चेन और फंक्शनल ग्रुप? दिस इज पोजीशन बिकॉज आपका फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपने चेंज करी, सो दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म। ओके, देन हैलोथेन इज एन एनेस्थेटिक। दिस इज हैलोथेन, उसमें ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, 3 फ्लोरीन है। दिस इज यूज्ड इन एनेस्थेटिक। आई डोंट नो इफ दिस शुड बी यूज्ड एज एनेस्थेटिक, लेकिन है। आइडेंटिफाई द कायल सेंटर इन हैलोथेन एंड मार्क इट विद एन एस्टेरिस्क। तो आई गेस सब ये कर लोगे आराम से, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। व्हेन हैलोथेन रिएक्ट्स इन अल्ट्रावायलेट लाइट, होमोलिटिक फिजन ऑकर्स एंड द CBr बॉन्ड इज ब्रोकन। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द होमोलिटिक फिजन ऑफ हैलोथेन। सो ये दिखा देते हैं, CF3 CHCl, और ये दिखा देते हैं Br। इसकी होमोलिटिक फिजन दिखानी है ना। सो होमोलिटिक क्या होती है? होमोलिटिक होती है अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस। आई डोंट थिंक यू हैव टू ड्रॉ द एरोज ओवर हियर, सिर्फ एक इक्वेशन करनी है, बट स्टिल फॉर सेफ साइड आई एम शोइंग द एरोज एंड एवरीथिंग। so you would form CF3CHCl फ्री रेडिकल कार्बन पे, एंड दूसरा वाला क्या है? इट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इजी पीजी। ठीक है, कौन सा स्टेप कहलाएगा ये इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? हम इसको क्या बोलेंगे? कौन सा स्टेज है ये इन द फ्री रेडिकल? दिस इज इनिशिएशन बिकॉज अ स्टेबल मॉलिक्यूल ब्रोक इनटू 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड फॉर यू। Then complete figure 4.2 to show the arrangement of electrons in a bromine atom using the electrons in boxes notation। ठीक है भाई, दिखा देते हैं। आर्गोन के आगे देखना है, आर्गोन के आगे देखते हैं, आर्गोन के आगे क्या है? आर्गोन के आगे, आर्गोन के आगे है, किधर है आर्गोन? आर्गोन यहाँ है। अच्छा, now this was 1 2 3, this is 4s2 3d10, then 4p6, नहीं ये रहा 4p5। ठीक है जी। तो आर्गोन के आगे क्या है? आर्गोन के आगे है 4s2 3d10 एंड देन 4p5। ठीक है, लेट्स राइट दिस डाउन। इट इज आर्गोन, आर्गोन के आगे है 4s2 3d10 एंड देन 4p5। ठीक है, सो 4s2 3d10 and then 4p5, so this would be something like this। ठीक है, once again I don't feel like कुछ जो है वो इसमें भी कुछ डिस्कशन की जरूरत थी। दिस इज प्रीटी इजी, वी आर वेरी familiar with this। X is an addition polymer, draw the monomer of X। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है in drawing the monomer। now you can see कि ये बॉन्ड है जो बाहर जा रहा है और ये बॉन्ड है जो बाहर जा रहा है। ठीक है जी, यानी the double bond used to exist over here। अगर यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड है, so basically double bond used to exist over here, right? So let's draw this a bit in the side। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको a bit in the side, and so basically यहाँ से वो बॉन्ड हटेंगे जो निकल रहे हैं बाहर, and this would be the double bond। ठीक है जी, तो मुझे बोल रहे हैं draw the monomer। I think it shall be something like this। अच्छा, 1 2 3, 1 2 3 और ये Cl है, तो 1 2 3 और फिर Cl and this would be something। ठीक है, आप ये भी बना सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसमें वो भी बना सकते हो, क्या कहते हैं, आप अपनी ड्राइंग भी करके दिखा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा मुझे ड्राइंग करनी होती। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम इन मेकिंग एडिशन पॉलीमर? अजीब ही मार्क्स थी, मैं पता नहीं उल्टे सीधे चीजें दी हैं। सजेस्ट वन रीजन व्हाई द डिस्पोजल ऑफ आइटम्स मेड फ्रॉम एक्स इज डिफिकल्ट। सो एक्स, इसको अगर हम डिस्पोज करेंगे तो क्यों मुश्किल है इसमें? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिस्पोज एडिशन पॉलीमर्स?
तो यू कैन राइट टू थिंग्स दैट यू कैन राइट ओवर हियर. क्या क्या हो सकता है वो? Non biodegradable, very good for you. And anything else? You could have also written that if you burn them, then HCl will be produced poisonous, which is poisonous. So if you burn them, HCl, a poisonous HCl will be produced. Okay? So that is also a valid thing. And this is only going to happen जिसमें Cl होता है और किसी में नहीं होगा. So if you burn them, poisonous HCl will be produced. And then further उसकी वजह से problems, किसी ने अगर inhale कर ली तो वो मर सकता है, and acid rain बनाएगी and so on and so forth. बाकी सारी बकवास. ठीक है. Figure 5.1 shows the three reactions of 2-bromopropane CH3 CHBr CH3 CH3 CHBr CH3. Reaction 1 है ब्रोमीन की जगह OH आ गया. रिएक्शन 2 है ब्रोमीन की जगह NH2 आ गया. रिएक्शन 3 है डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन बन गया. ठीक है. Complete table 5.1 for each reaction by stating the reagent and conditions used, identifying the type of reaction that occurs. तो reaction 1 में क्या कंडीशन इस्तेमाल करेंगे? कौन सा रिएजेंट है हमारे पास? Acidified K2Cr2O7. You're turning the bromine into alcohol. Aqueous NaOH. Yes, Mariam. You're using NaOH aqueous. ठीक है. NaOH aqueous है और इसकी कंडीशन क्या होती है? You have to heat under reflux. ठीक है नी? So this is the thing. And what type of reaction is this? क्या होता है ये? Nucleophilic substitution. ठीक है नी? This is nucleophilic substitution. Right. Very good. Okay. Now, next one. Number 2. Br की जगह आपने NH2 डाल दिया. What were the reagents and conditions for this? Ethanolic NH3. Yes. So you would use ethanolic NH3 और condition क्या होगी इसकी? Very good, Mariam. Ethanolic NH3 plus heat in sealed tube under pressure. ठीक है. इस वाले में you cannot use heat under reflux. Why is that? Because NH3 is less dense. वो कंडेंसर में ऊपर चली जाएगी, वो उस apparatus में ऊपर चली जाएगी, नीचे रिएक्ट ही नहीं करेगी. So आपको sealed tube और इसको हीट करना पड़ेगा in a sealed tube under pressure so that the ammonia and the organic reagent react. And once again, this is a form of nucleophilic substitution. ठीक है. So that's that. ठीक है. अच्छा, next number 3. What is this? कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया हमने इसमें? You eliminated bromine, introduced a double bond. Not aqueous NaOH. Yes, Sadaf, it's ethanolic NaOH. Yes, yes, yes. ठीक है. So ethanolic NaOH और heat and reflux करते हैं इसमें. You do heat and reflux. ठीक है नी? नहीं, आप heat and reflux कर सकते हैं इसमें. ठीक है नी? कर सकते. Don't worry. So NaOH in ethanol plus heat under reflux. And this is going to be type of reaction क्या है आपका ये? This is known as an elimination reaction. Yes, perfect. So elimination. Okay. A sample of 2-iodopropane reacts under the same condition as reaction 1 to produce CH3, CHOH, CH3. Explain why 2-iodopropane reacts at a faster rate than 2-bromopropane. तो आयोडीन वाला ज्यादा जल्दी क्यों रिएक्ट कर रहा है देन द ब्रोमीन वाला? क्यों वो ज्यादा जल्दी जो है वो OH उसमें सब्स्टिट्यूट जाता है और ब्रोमीन वाले में देर से होता है सब्स्टिट्यूट? तो मार्क्स कितने इसके? 2 मार्क है. ठीक है नी? सो रीजन क्या है इसका? समझ लो, सी आई बॉन्ड एंथैल्पी इज लेस देन दी सी बी आर बॉन्ड एंथैल्पी. तो सी आई बॉन्ड इज weaker than
CBr बॉन्ड, और ये काफी नहीं है क्योंकि हमें 2 मार्क्स का लिखना है, क्योंकि हमें एक ही मार्क देगा, ठीक है। नाउ क्या कहते हैं, लेट्स राइट दी मोर फर्दर रीजंस कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो CI बॉन्ड वीकर क्यों होता है? द रीजंस फॉर दैट वर के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एक तो ये था कि आपकी जो ऑर्बिटल ओवरलैप है वो इनएफिशिएंट हो जाता है, राइट। एंड द बॉन्ड डिस्टेंस, द लास्ट वन इज अ बॉन्ड डिस्टेंस। आयोडीन इतना बड़ा है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। सो दिस is because iodine has a lower electronegativity, forms an inefficient bond overlap, and due to its larger radius cannot attract the shared pair of electrons strongly, ठीक है, which obviously means कि electronegativity वाली ही चीज है, so cannot attract the shared pair of electrons strong, so therefore the CI bond is weaker, ठीक है। अच्छा, further moving on, figure 5.2 shows how butane 1-ol can be made from 1 mole propane in 3 steps. 1 mole propane है, you added a nitrile group, उसके बाद आपने इसको कार्बोक्सिलिक में टर्न कर दिया, उसके बाद आपने इसको अल्कोहल में बना दिया, ठीक है जी। ध्यान में ये रखें कि 1 ब्रोमो प्रोपेन था और आपकी चेन इंक्रीज कर गई, आपने ब्यूटेन 1-ol बनाया, ठीक है। नाउ इन स्टेप 1, 1 ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट्स विद CN- टू फॉर्म ब्यूटेन नाइट्राइल। Complete figure 5.3 to show the mechanism for step 1. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. Okay. Now, इधर जो है वो एक चीज है which will be like, सर ये तो हमें आपने पढ़ाया ही नहीं है ना। सो अब क्या करें, क्योंकि मैंने आपको कौन सा सिखाया है, मैंने आपको OH माइनस का सिखाया है और सिर्फ वही सिखाया है, उसी में SN1 SN2 की बात ही करेंगे, राइट। सो ओवर हियर द एग्जामिनर इज वांटिंग यू टू इन्फर बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो, ठीक है जी। कोई नया मैकेनिज्म नहीं है, कोई और चीज नहीं है, आप उसी इन्फ्रेंस को लेके क्या करोगे, यू विल फर्दर टू इट, ठीक है जी। आपने उसको फर्दर बस आप वही इन्फ्रेंस इस्तेमाल करके करोगे, ठीक है जी। देख लोगे पूरा मैकेनिज्म भी नहीं है, इफ वो याद करो उसमें यू हैड टू शो कि पहले ये बॉन्ड टूट रहा है फिर ये बॉन्ड बन रहा है, SN1 वाले में SN2 वाले में था, इंटरमीडिएट आता है, सो फॉर्थ। सो ये पूरी चीज नहीं है, ठीक है जी। देयर जस्ट सेइंग कि भाई कंप्लीट कर दो जितनी आपकी इंफॉर्मेशन आपको पता है, द ऑल दैट यू नो, बस उसके हिसाब से आप कंप्लीट कर दो। उन्होंने बोला है डायपोल्स लगा दो, लोन पेयर्स लगा दो, चार्जेस लगा दो, तो हम लगा देते हैं, ठीक है। नाउ ब्रोमीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लेगा D-, ये लेगा D+, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली डिसोसिएट करेगा, ब्रोमीन ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर देगा कार्बन, सो इट विल अटैक दी कार्बन, ठीक है। होगा ये कि ये यहाँ पे लग जाएगा और ब्रोमीन बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर आपको इसमें भी दिखाना हो तो आप यहाँ भी दिखा दो, ये D+ है और ये वाला D- होगा एज अ होल। सो दिस इज द मैकेनिज्म, डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ा नहीं है हमने ये, लेकिन उसमें देख लोगे कि जो बीज की और चीजें होनी है और जो डिफरेंट चीजें हैं, दे बहुत सारे अलग कोर्सेज और CI कोर्स जैसे एड एक्सेल का या वो है, तो उनमें भी उनमें ये वाले मैकेनिज्म भी है, आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो घबराओ नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट दिस इज जस्ट अ इन्फरेंस का क्वेश्चन। इसमें बीच के सारे स्टेप्स उन्होंने राइट किए, उन्होंने खुद ही जानबूझ के इसको एज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में किसी को भी, ठीक है। दूसरी बात ये भी देख लें कि व्हाई डिड आई डू दिस, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या है, दिस इज ए प्राइमरी हैलोजन वाले, ठीक है जी, प्राइमरी है ये। तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में होता है SN2, SN2 में क्या होता है, SN2 में वो चीज होती है जिसमें यू वुड फॉर्म दैट इंटरमीडिएट, राइट। सो बेसिकली ये बॉन्ड टूटा है, ये हुआ है, तो
इट इज इन्फरेबल कि भाई यहाँ पे आपके पास वो बाकायदा थोड़ी देर के लिए ब्रोमीन और CN जुड़े हुए होंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और इस पे प्लस चार्ज आ रहा होगा, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। इट इज इन्फरेबल, ठीक है। बट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म के क्या हकीकत में सब चीजें ऐसी हैं या क्या हो रहा है, कह रहा उसका उन्होंने थोड़ा सा डम डाउन वर्जन उन्हें ये बना के आपको करवाया, ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, विच यू कैन सर्च आउट, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट दैट्स नॉट इन कोर्स जो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें बस जो हमें पता है उसकी बेसिस पे हमने इन्फ्लुएंस कर लिया, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज? नो। ओके, सो ये आ गया। अच्छा, मैंने ब्रोमीन के भी लोन पेड दिखाए थे, ये रहे ब्रोमीन के लोन पेड। अच्छा, फिर उसके बाद इन स्टेप टू ब्यूटेन नाइट्राइल इज हीटेड विद HCl aqueous, a hydrolysis reaction occurs, construct an equation for the reaction in step 2। तो स्टेप 2 के लिए आपने जो है वो इक्वेशन बनानी है, बना लेते हैं। सो दिस इज CH3 CH2, दिस इज CH2, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N। तो 1 2 3 4, 4 C है। फिर क्या है आपके पास? 3 + 2 5, 5 + 2 is 7, so C4H7 and then N, right? So एक ही नाइट्रोजन है, 3 2 2 ठीक है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। अच्छा, और फिर क्या हो रहा है, आपने इसको HCl aqueous के साथ रिएक्ट करा है, ठीक है। यू हैव हीटेड इट विद HCl aqueous। सो आपने जब इसको HCl aqueous के साथ रिएक्ट करा है, तो रिमेंबर क्या फॉर्म होता है, यू वुड फॉर्म एन अमोनियम सॉल्ट। सबसे पहले तो ये कर लो, ये तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा, यू ऑल नो दैट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आप यहां से वर्कआउट कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। दिस इज CH3, ये है CH2, ये है CH2, एंड दिस शैल बी C डबल बॉन्ड OH। सो वही 4 C है, तो C4। फिर क्या है? 1 2 3 4, देन 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, and O2, ठीक है। सो यू हैव मेड इट इनटू समथिंग लाइक दिस। सो 1 2 3 4, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, ठीक है। ये बन गया है। और ये जो अदर चीज होती है, जो लास्ट चीज होती है, वो होती है बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम सॉल्ट बनती है, राइट। सो द अदर थिंग इज गोइंग टू बी अमोनियम सॉल्ट ओवर हियर, सो NH4Cl, ठीक है। नाउ आई हैव आल्सो ऑलवेज टोल्ड यू कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इसकी सारी सिमेंटिक्स में घुसो। यू कैन ऑल्सो यूज H+ ओवर हियर, और यहाँ पे NH4+ भी कर सकते हो, उसको जरूरी नहीं है Cl- का बना हुआ है, सो फॉर। बस हमने लिख लिया है, लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस, कि ये हमसे किस तरह से बैलेंस होगी। एक सेकेंड, राइट। सो ऑब्वियसली यू कैन सी HCl है, ऑक्सीजन तो इधर था ही नहीं, इधर ऑक्सीजन नहीं है। सो वेयर इज दैट ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम? बेसिकली यहाँ पे हमें पानी भी डालना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो जस्ट you'll have to just infer this, ठीक है। सो you'll have to add H2O over here as well, एंड देन अब आप कर ले। तो देख लेते हैं, अगर हमारा बैलेंस हो गया तो अच्छी बात है। C4H8 है, Cl है, NH4 है, हाँ हो गया बैलेंस, इसको बस 2 कर ले, ठीक है। we'll just make this 2 and this shall be our balanced equation, ठीक है। how did I know why to add water? Because there was no oxygen on this side। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया यहाँ पे? इधर से ही आया होगा ना, पानी से। सो बेसिकली पानी इधर आ रहा है, ठीक है। और जब भी इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, राइट, दैट द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड हाइड्रोलिसिस इज बिकॉज ऑफ वाटर। अच्छा, नाउ स्टेप 3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिडक्शन रिएक्शन इन स्टेप 3। use H to represent and one atom of hydrogen from the reducing agent। उससे पहले टेल मी द रिएजेंट, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कैसे करूंगा अल्कोहल में? What is the reagent that we use? Do you guys remember? Very good, Faria. So you used to use LiAlH4 in dry ether. So LiAlH4 in dry ether. It is very important to write. It will always be in dry ether. aqueous solution में इसको कोई भी नहीं डाल के इस्तेमाल करता, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। अच्छा, और इसको हमने रिड्यूस करना है, तो हमारा ये चीज थी, इट वाज C4H8O2, C4H8O2, it is being reduced by reducing agent, ठीक है। एंड क्या बन रहा है? CH3, 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 2 CH2, 3 2 7 9 10, C4H10,
O. So this is forming C4H10O. So and obviously एक ऑक्सीजन मजीद भी है तो क्या चीज बन रही होगी, पानी भी बन रहा होगा लाजमी, right? And just have to balance this. So how many hydrogens do I need? C4 तो है 10 12, मेरे पास इधर 8 है तो ये 4 हो जाएंगे एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो nope. इसके अलावा ओके वी हैव वन मोर क्वेश्चन। वाओ इजंट दिस अ बिट लॉन्ग? ओके भाई लेट्स आल्सो डू दिस। 6 क्वेश्चंस है इसमें, हमने पिछले बार देखे थे किसी में 3 भी थे, किसी में 4 थे, ये हमने 4 3 वाले ही देखे थे। Z is a molecule which contains the elements carbon, hydrogen, oxygen only. Z contains only alkene and carboxyl functional groups. Complete table 6.1 by describing the observations that occur when two different reagents are separately added to samples of Z. ठीक है, Z is a molecule जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और Z contains only an alkene and carboxyl functional groups. So जब मैं Br2 डालूंगा तो we'll say the red brown solution decolorizes और जब हम Na2CO3 डाल रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? You will see that the carbonate will produce effervescence of CO2 gas. So effervescence या bubbling या fizzing, however you want to write that. Yes. So effervescence. ठीक है नी, ये हो गया हमारा। ऑब्वियसली कार्बोक्साइल का मतलब क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है नी। नाउ टेबल 6.2 shows the percentage by mass of each element present in Z. Using the data in table 6.2 demonstrate that empirical formula of Z is this much. बहुत आसान है, CHO। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन क्विक। 41.38 ये क्या है, 3.45 ये क्या है, 55.17 divide by 12 divide by 1 divide by 16. What are the values coming out to be? 41.38 divided by 12, it is 3.448. This is 3.45. मेरे ख्याल से 3.45 ही कर लेते हैं इसको, right? Let's make this 3.45 as well. And ये क्या हो जाएगा, 55.17 divided by 16, that is also 3.45. ठीक है, नजर आ रहा होगा, 3.45 से सब कुछ डिवाइड कर दो तो वही आ जाएगा, CHO आ जाएगा। ठीक है, नाउ दैट डज नॉट मीन CHO आ गया तो इसका मतलब ये अल्डिहाइड होगा, दैट जस्ट मीन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है। सो 1:1:1 यानी CHO ही होगा। फिगर 6.1 shows the mass spectrum of Z. ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज समझ ले बिकॉज यू गाइज डिड नॉट टेक दैट क्लास और आई होप रिकॉर्डिंग देख लियो, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नाउ यू गेट मास स्पेक्ट्रम आपको दिया हुआ है, इधर आपको बहुत सारी पीक्स मिल रही हैं। ठीक है जी, एक पीक मिल रही है 116 पे, एक पीक मिल रही है 117 पे, एंड देन देयर आर सम फ्रैगमेंट्स ऑफ Z दैट आर यू कैन एक्सपीरियंस एट 71 एंड 45। ठीक है जी, तो बोल रहे हैं डिड्यूस द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ Z, explain your answer by referring to the molecular ion peak in figure 6.1 and the empirical formula of Z। अच्छा, now मोलेक्युलर आयन पीक कौन सी है, वो ये वाली होगी। क्यों? बिकॉज 116 है, 116 से आगे एक पीक पॉसिबल है विच इज M+1 और उससे पॉसिबल आगे होती है M+2। अगर M+2 होती तो फिर आपको मिल रही होती एट 180, बट इसमें नहीं है। और वो क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन भी नहीं है ना ब्रोमीन है, तो M+2 प्रेजेंस बताती है क्लोरीन या ब्रोमीन की। M+1 क्या बताती है? M+1 allows you to calculate the number of carbon atoms in this. It allows you to calculate that. ठीक है, वो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ इसमें सवाल होगा। तो you know that this is the M peak, ये M peak है और ये है हमारी M+1। ठीक है जी। नाउ M peak क्या बताती है? M peak हमें MR ही बताती है ऑफ द कंपाउंड, वो हमें MR ही बताती है। सो बेसिकली the MR equals to 116 as M peak is at 116। अब आपको MR पता चल गया, आपको पता है N कैसे निकाल देते हैं? By dividing the molecular formula mass by the empirical formula mass। empirical formula mass क्या है? 12 plus 1 plus 16। So what is this working out to be? So this is working out to be 4। So that means 4 है। तो अब आपको मोलेक्युलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है जी, तो मोलेक्युलर फॉर्मूला मैं ये देख रहा था, मैं मोलेक्युलर फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मैं मोलेक्युलर क्या लिखा हुआ है।
सो मोलेक्युलर फॉर्मूला C4H4O हो जाएगा, ठीक है जी। सो द मोलेक्युलर फॉर्मूला इज C4H4O4, दिस इज योर मोलेक्युलर फॉर्मूला एंड द एक्सप्लेनेशन इज इन योर मैथ्स, आपने मैथ्स में अपनी एक्सप्लेनेशन कर दिया। नाउ यूज फिगर 6.1 टू सजेस्ट द फॉर्मूले ऑफ द फ्रैगमेंट्स विद m/e peaks at 45 and at 71। ओके, नाउ हियर इज समथिंग, जो अब m+1 आपको दी हुई 170 है, अगर इसकी अबंडेंस दी हुई होती तो यू विल सी इन द रिकॉर्डिंग दैट यू कुड हैव यूज्ड m/m+1। अगर ये 100 है तो ये होती है 1.1 टाइम्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और अगर ये दी हुई है 3.45 एंड ये दी हुई है समथिंग लाइक 0.27, तो यू कैन वर्क आउट कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड, ठीक है। इफ यू नॉट वॉच द रिकॉर्डिंग, इस मेथड का नहीं पता है तो यू मस्ट डेफिनेटली वॉच दैट रिकॉर्डिंग। सो जरूरी नहीं है वो आपको इस तरीके से निकलवाते, हो सकता है वो m/m+1 वाले तरीके से भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपसे निकलवा सकते थे एंड देन रिड्यूस द मोलेक्युलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, नाउ बोल रहे हैं use figure 6.1 to suggest the formulae of the fragments with m/e peaks at 45 and at 71। okay, now for this thing हमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। C4H4O आया, O4 आया, ठीक है। what does that mean for us? C4H4O4, O4 है यानी इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो। Are you getting it? So there must be an OOH over here and there must be an OOH over here, लाजिमन। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? अब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड यहाँ तो नहीं आ सकता और ना ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सो डबल बॉन्ड इज डेफिनेटली एग्जिस्टिंग ओवर हियर। सो 1 2 3 ये आ जाएगा एक हाइड्रोजन, 1 2 3 ये आ जाएगा आपके पास एक हाइड्रोजन। विल दिस शो मी सिस ट्रांस? क्विक क्वेश्चन, सिस ट्रांस दिखाएगा हमें? yes, very good, so it will show us cis trans as well because एक कार्बन पे एक जगह हाइड्रोजन है और दूसरी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली विद दिस, इस पे हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक है, इस पे दो डिफरेंट ग्रुप्स है ऑन ईच कार्बन एटम। अच्छा, नाउ use figure 6.1 to suggest the formulae of the fragments with me peaks at 45 and at 71। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा what kind of fragmentation is possible। तो एक फ्रैगमेंट तो पॉसिबल ये है कि ये चीज निकल के अलग हो जाए और ये चीज निकल के अलग हो जाए, राइट। दूसरा फ्रैगमेंट क्या पॉसिबल है? वो फ्रैगमेंट पॉसिबल ये है कि ये चीज अलग हो जाए और ये चीज अलग हो जाए, राइट। तीसरा फ्रैगमेंट क्या पॉसिबल है? तीसरा फ्रैगमेंट पॉसिबल ये है कि ये चीज अलग हो जाए और ये चीज, विच यू कैन सी इज द सेम एज द फर्स्ट रेड वन ही। तो इसका मतलब है बस यही दो फ्रैगमेंट्स हैं। लेट्स कैलकुलेट द एमआर ऑफ ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स। तो इस वाले का क्या होगा? रेड वाले का, लेट्स कैलकुलेट। दिस इज 12 plus 2 into 16, that's 32, plus 1, that becomes 12 plus 32 is 44, 44 plus 1 is 45। तो 45 आ गया, 45, 29 कैसे आया? 12 plus 16 plus 16 plus 1, so it's 45, ठीक है, 29 नहीं है, ठीक है, ओके। एंड देन दिस वन वुड बी, क्या होगा? दिस इज 12 12 12, so this is 3 into 12 and then 2 oxygens, so yani 32, and then 1 2 3, there is 3 hydrogens, so plus 3 hydrogens। so what is the answer that we're getting over here? So 12 plus 12 plus 12 plus 32 plus 3, so that is 71, not 73, that is 71, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हूँ। 3 कार्बन तो 3 into 12, 2 ऑक्सीजन तो 16 plus 16 32, एंड देन 1 2 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन मैंने इधर एड अप कर दिए। देन अगर आप दूसरा वाला भी चेक करो जस्ट फॉर मेकिंग श्योर, ठीक है, वैसे तो नजर आ रहा है यही दो होंगे, तो जस्ट फॉर मेकिंग श्योर, व्हाई वुड दे नॉट बी द सेकंड वंस? वुड बी 12 plus 12 24 plus 16 plus 16 32 प्लस ये हो गए हाइड्रोजन 2 तो 2, तो 20 plus 30 50 54 56 58 आ रहा है ये वाला। एंड ये वाला क्या आएगा? दिस शैल बी 1 plus 2 24 हो गए, ये हो गए 2 ऑक्सीजन तो 16 हो गए, और ये हो गया ये भी, तो दोनों के 58 58 आते, ठीक है जी। जो आपने जा रहा है यहाँ पे 58 वाला इन्होंने दिखाया नहीं आपको, वो भी होगा, दैट विल ऑल्सो बी अ पॉसिबल फ्रैगमेंट, लेकिन वो वहां पे उन्होंने आपको दिखाया नहीं है, दे हैव नॉट शोन दैट, ठीक है जी। सो आपको ये सब चीजें दिखाई। सो वी डेफिनेटली आर श्योर 45 वाला क्या है? दैट COOH, ठीक है जी, दैट COOH, एंड वो क्या होगा फिर? दैट शैल बी
लेट्स राइट दिस एज दिस। अच्छा, फ्रैगमेंट है तो फ्रैगमेंट में मेक श्योर कीजिएगा फ्रैगमेंट हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो लाइन आपको दिखाएगा वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। एंड दूसरा वाला क्या है, दिस इज CH CO2H, ठीक है। सो इट इज CH डबल बॉन्ड CH and then COOH which is also a positively charged state, ठीक है। And then the last thing is suggest the structure of Z using relevant information table 6.1 B and C। तो I think हम Z already बना चुके हैं, I don't need any relevant information, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। Even before you working out the fragments, I think you should have worked out the structure, ठीक है। क्वेश्चन बाद में पूछा हुआ है लेकिन I don't think there was any possible way of you deciphering के fragments क्या है। I think इसी तरीके से आपके पास निकलता। So this is the structure of the Z molecule जो आपके पास है, ठीक है। So this is your complete paper, ठीक है। कौन सा पेपर था ये, this was summer 22 question paper